Hello, everybody. Today, in Standard 8th subject Social Science, we are going to learn lesson number 6 Human Resources. Now, we all know the meaning of the heading Human Resources. Human means we, the people, and resources means how humans, we, the people, are helpful in many work, and the detail of that work, in which kind of an work we are helpful, that we will see in this lesson. So let us start the lesson Human Resources, which is lesson number 6. Collecting and cataloging information about people living in a country or any particular region of the country is called census. Census means what? The counting of people in particular area of any state or any country, that is census. It is done every 10 years under the regulation of the central government in our country. The last census was carried out in the year 2011. The seventh time that calculation was done, means in particular village how many people are there, in particular district, in particular state, and overall through that counting we can get the idea about the number of people lives in the whole country. Human resource is the human capital of our country. Development of the country depends not only on the area of the country or natural resources, but it is also based upon the quality of human resource that contribute a lot to economic development. How humans plays a मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. ऐसा नहीं है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि माउंटेन्स, वाटर बॉडीज़, अच्छी एयर, या ज़मीन में जो फ्यूल्स छुपे हुए हैं, वो सिर्फ उससे ही कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता. पर जिस देश में पढ़े लिखे इंसान हो और उनके काम करने के तरीके से देश आगे बढ़ता है. A census is done for the 5-year development plans of a country with regards to necessity like food, water, housing facilities, industries, electricity, employment, education, conservation, etc. It is important to have a census. If we know the particular number of people that lives in our country, we can come to know the needs or facility to the people of the country, how much it should be provided. Nowadays, the forest department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. Not only humans, but the counting of different animals, birds, plants, उनका भी काउंटिंग होता है ताकि पता चले कितने प्लांट्स काफ़ी एंडेंजर्ड है, कितने एनिमल्स एंडेंजर्ड, मीन्स काफ़ी कम नंबर में वो पृथ्वी के ऊपर रहे हैं. द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच फॉर्म्स 2.42% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की जो लैंड एरियाज़ है उसमें इंडिया में जो लैंड एरिया है वो 2% 42 जितनी इंडिया में है. एंड एज फार एज इट कंसर्न टू इंडिया स्टैंड 7th in the world. However, in terms of population, India is second after China. More than 16% of the world's population resides in India. So you can compare the number of this. Qualitative human population is also called human resource. अगर लोग पढ़े लिखे ना हो, क्वालिफाइड ना हो, जिनको पढ़ना लिखना ना आता हो, जिनके पास बेसिक नॉलेज ना हो लाइफ लिव करने का, तो वो लोग इंडिया में या कोई भी कंट्री में उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि क्वालिफाइड ह्यूमन पॉपुलेशन की काउंटिंग
The quality of human resource depends on education and intelligence. Skilled citizens like doctors, engineers, sportsmen, industrialists, farmer and other responsible citizens are human resource. ऐसे जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि उनके कारण काफ़ी डेवलपमेंट होती है. अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर की मेडिसिन से, उनकी ट्रीटमेंट से वो इजीली रिकवर कर सकता है. वैसे ही एक स्किल्ड इंजीनियर काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बना सकता है, अच्छे कंस्ट्रक्शंस कर सकता है. सो दे आर ह्यूमन रिसोर्स. ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, especially in the last 5 decades, the rate of population growth is a cause of worry. In 2001, the population of India was 102.87 crores. 102 करोड़ थे 2001 में. In 2011, it is 121.01 करोड़, यानी कि 121 करोड़ लोग 2011 में जब काउंटिंग हुए तब इतना नंबर था. Various schemes have been launched to bring control over population growth. Consequently, rate of population growth has declined by 1.7%, and this is the noteworthy fact. Now reasons. कौन से ऐसे कारण से रीजन्स हैं जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं? इमिग्रेशन फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड सेटलिंग एब्रॉड. इमिग्रेशन फॉर ट्रेड, बिज़नेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर एजुकेशन के लिए, या कहीं एब्रॉड में सेटल हो जाना, दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना. लोअर डेथ रेट, यानी इसका मतलब ये है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्री से इंडिया में आके सेटल हो जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ता है. लोअर डेथ रेट यानी कि अच्छी दवाइयाँ, अच्छी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ के कारण पहले जो इंसान कोई भी डिसीज़ के कारण मर जाता था, अब वो मरता नहीं है. वो दवाइयों के कारण और लंबा जीता है. वो कोई भी रोग हो, जैसे कि कॉलेरा, प्लेग, टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, पहले ये रोग जब होते थे तो लोगों का जीने का जो रेट है वो काफ़ी कम था. पर अब दवाइयों के कारण और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें फ्री में ये सारी दवाइयाँ मिलती है, जिससे लोगों का मरना कम हो गया है. और इसी के कारण पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है. अच्छा खाना आप सभी को प्रोवाइड हो रहा है. देन प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई भी अगर डिज़ास्टर आने वाला हो तो उसके पहले गवर्नमेंट सबको इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि उनकी जान बच जाए. एंड ड्यू टू दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मीन्स पहले जो लोग थे वो काफ़ी कम उम्र में ही मर जाते थे. अगर पहले की बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो छोटे बच्चे होते थे जब वो बर्थ उनका होता था तो कई सारे बच्चे ऐसे थे कि उनके बर्थ के टाइम पे ही वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी. तो उसी के कारण इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ता नहीं था. पर अब क्या हुआ है कि ड्यू टू द मेडिसिन्स, द लिटल बेबीज हु गेट बर्थ ऑन the surface of India, they live more than compared to the living age in the previous times. Here you can see average lifespan, यानी कि कोई इंसान कितने साल जीता है. 40 to 41 years इतना ही था 1920 में, जो अब बढ़ के 63 या 64 वहाँ तक तो सारे इंसान जीते हैं अगर कोई मिस फॉर्चून ना हो तो. दूसरे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं बर्थ रेट को,
इलिटरेसी यानी कम एजुकेशन, वो ये समझते नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुपरस्टिशंस, कुछ ऐसे बिलीव्स जिसके कारण वो बच्चे को जन्म देते ही रहते हैं। ऐसा माना जाता था पहले के टाइम में कि घर में एक लड़का तो होना ही चाहिए, और जब तक लड़का बर्थ ना ले तब तक वो एफ़र्ट्स करते ही रहते थे, और काफ़ी सारे गर्ल्स को भी वो जन्म देते थे। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सोशल कस्टम्स wherein a male child is considered important, चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में मैरिज हो जाना, पुअर्टी यानी कि गरीबाई, क्योंकि वो सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा वो पैसे कमा लाएंगे। विडो रीमैरिज, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली, एक्सेट्रा। सो these are the points that affected India for the high population growth. Rising population causes administrative problems as well as problems of shortage of food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic congestions, etc. अब क्या हुआ है, ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण शॉर्टेज ऑफ फूड, सबको खाना नहीं मिलता, घर नहीं मिलते, पानी अच्छा ड्रिंकिंग के लिए नहीं मिलता, पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, सबको नौकरी नहीं मिलती, और ट्रैफिक भी अब काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। सो these are the backdrops of हाई पॉपुलेशन रेट। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सभी को। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। विल स्टॉप हियर and we'll see the more part of this lesson in next video. So thank you very much for joining.